स्वामी शैलपुत्र महाराज जी जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सो आज 1 मार्च 2021 हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चैप्टर 15 टेक्स्ट 12 रिसेट करते हैं। यत्तेजसाद भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितं स गिरिरजो शस्त्रमदान्यजं मे अन्येऽपि चाहम् उनुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्। यत्तेजसाद भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितं स गिरिजो शस्त्रमादान्यजं मे अन्येऽपि चाहम् उन्मन्येव कलेवरणं प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्। वन मोर। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितं स गिरिजो शस्त्रमदान्यजं मे अन्येऽपि चाहम् मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्। वर्ड मीनिंग। यत जिसके तेजसा प्रभाव से अथा एक समय भगवान ईश्वर शिवजी युद्ध में शूलपाणि त्रिशूलधारी विस्मापितः आश्चर्यचकित सह गिरिजः हिमालय की पुत्री समेत अशस्त्रम अस्त्र अदात दिया निजमा अपना में मुझको अन्य अपे और दूसरों और दूसरे भी च तथा अहम मैं अमुना उनके एव निश्चय ही कलेवरेण शरीर से प्राप्त महेंद्र भवने इंद्रदेव के घर में महत महान आसन अर्धम आधा ऊंचा आसन। ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे स्थान पर बैठने को दिया गया। हरे कृष्णा। तो परपोर्ट अगर आप लोग साथ दें, एक एक पैराग्राफ आप लोग पढ़ें तो फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Yes, anybody can read? Yes. So are you asking to read us the purport? Yeah. One paragraph. Yes, yes. So text number 12, isn't it? 12. Yeah. Text 12. Krishna, I will read the first paragraph in Bengali. परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृपाয় দেবাদিদেব মহাদেব সহ সমস্ত দেবতারা অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। মহাদেব তো অন্য দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত হলে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ না হতেও পারে। রাবণ ছিল শিবের পরম ভক্ত, কিন্তু সে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে পারেনি। হরে কৃষ্ণ। সুচারু প্রভু পরে পড়বেন। Jivan Beta, we got the book, no?
পুরাণে এরকম প্রভু জীবন মিটল ইউ ক্যান ওপেন বাই দিস টাইম আই উইল রিড দ্য বুক পুরাণে এরকম দৃষ্টান্ত 1.15.12, right? Yes. 1.15.12 yes Yeah, second paragraph I will read in English. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Krishna, नहीं पूरा ही है, पूरी बोल रहा है. correct, Prabhu? Yes. Was able to reach the heavenly planet even with the self-same body, and was honored by the heavenly demigod Indradeva, being seated with him half elevated. One can reach the heavenly planets by the pious acts recommended in the Shastras in the category of fruitive activities. And as stated in the Bhagavad Gita 9.21, when the reactions of such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded to the earthly planet. The moon is also on the level with the heavenly planet, and only persons who have performed virtues only, performing sacrifices, giving charity, undergoing severe austerities, can be allowed to enter into the heavenly planets after the duration of life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it is not possible to do so. The present attempts to enter into the heavenly planets by the modern scientists will certainly prove futile, because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any assets of sacrifice, charity, and austerities. The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the modes of passion and ignorance, and the symptoms of such influences are exhibited in their becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary systems. Above the heavenly planets, there are many other planets which only those who are influenced by goodness can reach. In heavenly and other planets within the universe, the inhabitants are राधिका माता जी पूरे जी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें सब समझ many में more आएगा. times than the human तीन beings. आदमी जरा पहुंचो They जाओ. are all pious in the higher and highest mode of goodness. They are all devotees of the Lord. And although इतने their लोग goodness बुलाना ही is not नहीं. adulterated, बड़ी still गुरु they are known as बड़ी demigods, गुरु possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो आज की संध्या के काल में अर्जुन की याद, भक्त के जीवन में भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का स्मरण ही भक्ति कहलाती है. सदैव, हर समय, हर पल उसको भक्त कहते हैं जो हर समय हर पल भगवान की याद करे, सुख में या दुख में, किसी भी परिस्थिति में. तो अर्जुन ये बता रहे हैं कि कितने बड़े भक्त थे. भगवान की याद कह रहे हैं. देखिए उनकी कृपा से क्या हुआ कि एक बार जंगल में वेद व्यास आए और युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, मेरे ख्याल से वो तो सब त्रिकालदर्शी, उनको सब मालूम है, युद्ध जरूर होगा. लेकिन देखिए कौरवों की सेना में जो है द्रोण है, कर्ण है, भीष्म है, मद्र नरेश है. ऐसे ऐसे लोग उनकी सेनाओं में हैं जिनके पास जो है सेलेस्टियल वीपन है,
उनके पास जो है दिव्य शस्त्र हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी दिव्य शस्त्रों को अर्जित करो। तो वेदव्यास ने युधिष्ठिर के मंत्र दिया। इस मंत्र के द्वारा तुम स्वर्गलोक में जाकर के देवी देवताओं से उनके जो है शस्त्र अर्जित करो। तो जब मंत्र मिला, इन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, देख, उनकी सेना में तो एक से एक महारथी हैं और उन तीन चारों के पास जो है ब्रह्मास्त्र हैं, अचूक हैं, और अगर उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उस पांडवों का हमारी हार होना निश्चित है। और हार का प्रॉब्लम नहीं है, अधर्म की जीत होगी, ये हमें जो है मंजूर नहीं है। यहां हारने जीतने का मतलब नहीं था, ये तो धर्म और अधर्म की बात थी। इसलिए मेरे पास मंत्र है, तो इस मंत्र का आह्वान करो और तुम जो स्वर्ग लोग जा करके देवताओं को प्रसन्न करके उनसे उनके आयुध ले लो। तो दरअसल में बड़ी अजीब सी चीज है, यहां ऊपर नीचे नहीं होता है, यहां होता है नॉर्थ एंड साउथ। हम उसको ऊपर समझ लें, लेकिन क्या आता है नॉर्थ एंड साउथ। सो अर्जुन जो है आज्ञा लेकर के सब भाइयों ने उसको फिर आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने उसके लिए प्रार्थना की कि तुम अपने मिशन में सफल हो जाओ। और इस प्रकार अर्जुन जो है नॉर्थ की तरफ चले, स्वर्गारोहण की तरफ चले। नॉर्थ एंड साउथ, अप एंड डाउन कुछ नहीं होता, नॉर्थ एंड साउथ। तो इतिहास में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जो मनुष्य रूप में आए और जो दो बार स्वर्ग गए। एक बार अर्जुन अपने आप गए और दूसरी बार स्वर्ग से ऊपर और कैलाश से नीचे, जहां महाविष्णु का निवास है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए। जब द्वारका में ब्राह्मण के पुत्रों की मृत्यु हो रही थी, उनके पुत्रों को लाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति है अर्जुन जो दो बार स्वर्ग गया। और इस बार स्वर्ग गया तो कहा, सुना है कि उन्होंने जो है शिव जी की प्रार्थना की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब अर्जुन जैसे ने शिव की प्रार्थना की, देवी की प्रार्थना की, क्या नाम, गोपियों ने कात्यायनी की प्रार्थना की, हम लोग क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते डेमी गॉड की? लेकिन वो भूल जाते हैं, यहां जो प्रार्थना या तो गोपियों ने की तो भगवान कृष्ण के कहने पर, या अर्जुन ने अगर शिव की आराधना की भगवान कृष्ण के कहने पर, और भगवान से उन्होंने जब पूजा की, अर्जुन ने जब पूजा की, मांगा कुछ नहीं, स्वतः ही शिव जी ने दिया। तो कहते हैं जब ये जा रहे थे, जब ये थोड़ा धरती के ऊपर गए, शिव जी ने देखा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो शिव जी ने जो है, इनको हराहर कहते हैं, इन्होंने अपना एक खटक का रूप धरा, व्याधि का, व्याघ्र बोलते हैं, व्याधि नो, लड़ाई करने वाला जो पशु हिंसक है, उसका रूप धरा। और वहां से देखने की एक शुअर बड़ी तेजी से अर्जुन की तरफ आ रहा था, तो अर्जुन ने भी उसको मारने के लिए बाण छोड़ा। वहां से शिव जी ने बाण छोड़ा, दोनों का बाण एक ही दफा लगा, शुअर की मृत्यु हो गई। अब शिव जी तो उसके रूप में थे, हंटर के रूप में थे, तो दोनों में कहा सुनी हो गई, ये मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा, और इस प्रकार दोनों में युद्ध हो गया। अर्जुन को नहीं मालूम कि शिव है, लेकिन शिव को मालूम है। और जब शिव जी उनसे लड़ाई कर रहे थे, युद्ध हो रहा था, तो शिव जी बहुत खुश हो रहे थे। उनको कैसे मालूम? उन्होंने कहा ये नर है जो नारायण का साथी है, आज इसके दर्शन हुए। खैर कुछ दिन युद्ध चला, फिर शिव जी ने अपना रूप दिखाया और शिव जी ने कहा कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हें स्वर्ग भेजता हूं, जाके तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओ।
तो अगले उसमें आने वाला है कि वहां क्या हुआ। तो अर्जुन गए, निष्कंठक होकर चले, वहां उन्होंने देवताओं को खुश किया। शायद अगले श्लोक में आ रहा है वो। इस श्लोक में आ रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो कहने लगे कि तब जब वो गए, इंद्र ने, वहां थोड़ी परेशानी चल रही थी देवताओं दानवों के बीच जो है परेशानी चल रही थी, और हर वक्त जो है दानव हावी हो जाते, और कहते हैं ये दानव जो थे देवताओं को मारकर समुद्र में छुप जाते। अब देवता लोग कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे इनको मारा जाए, वो हजारों की लाखों की संख्या में। तो जब अर्जुन आए तो उन्होंने कहा अब अर्जुन का साथ लेकर के हम इनको खत्म करेंगे, इनको मारेंगे, भगवान की कृपा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं स्वदेह, मैं गया स्वर्ग, और स्वर्ग में जो है आधा सिंहासन जो था इंद्र का, इंद्रासन अमरावती का, आधा उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया। ये क्या है? भगवान की असीम कृपा है, बिना भगवान के संभव नहीं होता। होगा वही जो राम रचि राखा, को करतब बढ़ावे पापा। होना वही है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान क्या चाहते हैं? लोगों की भलाई, लोक कल्याण के लिए भगवान चाहते हैं। भगवान का न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, भगवान सबके लिए सम है। लेकिन क्या होता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। लेकिन हम जो लोग हैं प्रकृति के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हमें लगता है हम करने वाले हैं। यहां पे अर्जुन कह रहे हैं नहीं, भगवान की वजह से हुआ। अगर मैं शिव जी को और पार्वती को प्रसन्न कर सका, मैं स्वर्गारोहण मेरा हुआ, इंद्र के आसन में मुझे बैठने की जगह मिली, तो ये सब भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं था। और आज वो भगवान स्वधाम चले गए हैं, वो जो हैं अदृश्य हो चुके हैं। इस जीवन का क्या करेंगे? याद आ रही है? आज ये दूसरा श्लोक भी ले लेते हैं, नंबर 13। तत्रैव मे विरहतो भुजदंड युग्मं गांडीव वल्लक्षणमारातिवाद्य देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभाव वितमाजमीढ तेनाहं मध्य मुषिता पुरुषेण भुम्ना। ट्रांसलेशन: जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्र देव समेत स्वर्ग में समस्त देवताओं ने निवात कवच नाम असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीड, हे वंशजराज, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिसके प्रभाव में मैं इतना शक्तिशाली था। परपोर्ट: हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य: स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, तो वह भगवान की इच्छा से शक्तिविहीन हो जाता है। हरे कृष्णा।
तो अर्जुन कहते हैं जब मैं स्वर्गलोक में था कुछ दिन वहां रुका, तो इंद्र से में जो है ये बोलते हैं देवता शोकार्य कुशलाहा, देवता लोग जो हैं शोकार्य कुशलाहा, अपने काम को निकालने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं। तब जब उनको पता चला कि निवात कवच नाम का जसूर है उसने तराही मचा रखी है, देवताओं को मार करके चुप जाता है और उसका कोई काट नहीं, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन जो गांडीवधारी हैं ये और उनके जो तर्कश हैं इनकी सहायता ली जाए ताकि हमारा कार्य कुशल हो सके। तो देवताओं में आपने देखा होगा भगवान इंद्र कई बार भगवान से लड़ पड़ते हैं, गलत काम भी कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी शरणागत आ जाते हैं। जिस प्रकार कोई उदंड बच्चा हो अपने छोटे भाई को परेशान करे, माँ बाप को परेशान करे, कुछ करे और फिर आगे माफ़ी मांग ले तो माता पिता उसको जो है क्षमा कर देते हैं। तो इंद्र एक बिगड़ैल लड़का जैसा भगवान से लड़ा, ये किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर वही श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान मैं तो तुम्हारे शरण में हूँ। और उनको अब कोई पछतावा नहीं। लेकिन जो दानव लोग हैं ये घमंडी हैं, ये कहते हैं हम अपने बल पर करेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, हम किसकी शरण में क्यों जाएं। और अर्जुन कहते हैं मैं इतना शक्तिशाली था भगवान की कृपा से और आज मैं शक्ति विहीन हूं क्योंकि भगवान नहीं है। पिछले दफे मैंने आपको श्लोक सुनाया था, द्रव्य कर्म कालश स्वभाव जीव एवच यद अनुग्रहता शांति न शांति यदुपेक्षया। द्रव्य opulence, karma, the possibility of doing work, kala, the time allotted to us, nature, the nature we have, every one of us has a peculiar nature. हम सब लग का जो है स्वभाव बिल्कुल सबसे अलग, एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। जिस प्रकार हमारे हस्ती की रेखाएं नहीं मिलती हैं, जिस प्रकार हमारे माथे की रेखाएं नहीं मिलती हैं, सब यूनिक। हमारा बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, चलने का तरीका, समझने का बिल्कुल अलग है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है बिल्कुल अलग। तो बोलते हैं द्रव्य कर्म से काल से स्वभाव जीव है बच्चा ज्यादा अनुग्रहता शांति। जब तक भगवान का अनुग्रह है ये चीजें रहती हैं, न शांति यदुपेक्षया, और वो नहीं रहती हैं जब भगवान उपेक्षा करते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है, पंडित पंडित राज करत है ना, मूरख मूरख राज करत है, पंडित फिरे भिकारी कर्मण की गति न्यारी। ये कर्म बड़ी अजीब चीज है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कर्म की बात हो रही है। एक बार किसी मैनेजर ने अपने ना किसी बॉस ने अपने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, किसी गुस्से में था। अब मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। घर आया, बीवी सामने मिली, बीवी को थप्पड़ मार दिया उसी गुस्से में। अब बीवी पति को कुछ नहीं कह सकती थी, तो बीवी ने क्या किया, उनका बड़ा लड़का था, एक बड़े लड़के को जोर से झपड़ मार दी। अब लड़का मां को क्या कहेगा, उसका छोटा भाई था, उसने छोटे भाई को झपड़ मार दी। और छोटा भाई क्या करता, वो घर से बाहर निकला गुस्से में, और रास्ते में एक कुत्ता था, उसने देख कुत्ते को लात मार के, कुत्ता वहां से भाव 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 कर गया। एक आदमी सामने आया, उसने उसको काट दिया। तो जिसको काटा वो कौन था, वो उस दुकान का मालिक था जिसने अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा। तो जो कार्य हम करते हैं रिपरकशन है,
वो वापस आता है, उसी शिद्दत से वापस आता है। उसने झापड़ मारी, यहां से कुत्ते ने उसका पैर काट दिया। तो बड़ी अजीब चीजें हैं, ये हमें समझना होगा कि जब तक हम भगवान के परायण न हो जाएं, हम जो भी करेंगे उसका फल मिलेगा। जो भी कर्म करेंगे पुण्य फल मिलेगा, विकर्म करेंगे पाप फल मिलेगा, और अकर्म मिलेंगे तो फल नहीं मिलेगा। और जब फल नहीं मिलेगा तो भगवान की शरणागति। तो अर्जुन बार बार याद करें कि मेरे भी इतनी शक्ति थी, यानी स्वर्ग के देवता भी जो है मेरी सहायता के लिए लालायित थे, और मैंने उस राक्षस का जब मैंने वध किया, जिसका वध स्वर्गलोक के देवता नहीं कर सके, ये शक्ति भगवान कृष्ण की थी। एक बार हम चिन्मया स्वामी के प्रबंध सुनने गए, तो चिन्मया स्वामी, उनके पैरों में बहुत तकलीफ थी, वो चल नहीं पाते थे, उसमें जाते थे, व्हील चेयर में जाते थे। तो आए, डाइस पे आए, भगवद गीता का प्रवचन किया, और क्वेश्चन आंसर में किसी ने कहा कि महाराज आपसे एक प्रश्न है कि आप भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, भगवान ने आपके साथ ऐसे क्यों किया? तो चिन्मय स्वामी ने कहा, मेरे प्रभु बड़े दयावान हैं, उन्होंने मेरे पैरों से मुझे जो है अपाइज किया है, मेरा मुंह अभी भी चालू है, अभी मैं भगवान का कीर्तन कर सकता हूं, भजन कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि पैर निकाले, मुंह नहीं निकाला। तो मैं भगवान भजन कैसे करता, कीर्तन कैसे करता, जप कैसे करता? तो ये भगवान के मेरे ऊपर अनुग्रह है। तो देखिए, भक्त जो होते हैं, जो भी उनके साथ घटना घटती है, वो हमेशा खुश। आप जयप्रताप गोस्वामी महाराज को देख लीजिएगा, इतने परेशानियों के बावजूद भी सारी दुनिया में इंटरनेट के द्वारा भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत की कथा करते हैं, बंगाली में कथा करते हैं, कभी कभी हिंदी में भी कथा करते हैं, इंग्लिश में कथा करते हैं। तो वो अडिग नहीं हुए कि मैं तो बीमार हूं, और हमें कभी 101 का बुखार आ जाए तो घर में झगड़ा, बच्चों को बोला लाइट बंद करो, शोर मत करो, ये बंद करो, ये बंद करो। हम सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्त सहन कर पाते हैं। आज अर्जुन को, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन को यह रियलाइज हुआ कि मेरी शक्ति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। वैसे भगवान ने कहा, निमित्त मात्र भवे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बनो। एक चीज याद आ गई कि एक बार एक बगीचे में फल लगे हुए थे, तो एक आदमी ने आंखों ने फल देखा और खाने की इच्छा हुई। तो जब आंखों ने देखा तो पैर सोते वहां चले गए बागीचे के नजदीक। अब बागीचे में पैर वहां तक चले गए, अब तोड़ने का काम किसका था? हाथ का था। हाथ उठे और वहां से फल तोड़े। जब फल तोड़े तो उसके किसी काम के नहीं। मुंह ने खाया, मुंह ने स्वाद लिया, लेकिन वो पेट में चले गए। अब जब पेट में चले गए तो वहां माली ने देखा, और माली ने जो है उठा के उसके पीठ में 2-3 डंडे मारे। अब पेट का तो काम नहीं था, पीठ ने बोला मैंने थोड़ी खाया, ये तो पेट ने खाया। तो जब पेट में डंडे पड़े तो आंखों से आंसू निकले। तो गलती किसकी थी? आंखों की थी ना। और फिर रोया कौन? आंखें ही रोई। तो कहने का मकसद क्या है कि हम जो है ये सीक्वेंस जो बन जाती है, हम तब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जब हमें करने चाहिए ये तो भगवान की इच्छा थी, है? ये तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे साथ हो रहा है तो हो भाग्य, राम जी की कृपा से। तो ये दुनिया है। हम सब समझते हैं कि जो अच्छा हो रहा है मैंने किया, जो गलत हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन नहीं,
हर व्यक्ति विशेष के हिस्से में सुख है, दुख है, जैसे कहते हैं ना, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, सबके हिस्से में है। किसी हिस्से में पहले आता है, किसी हिस्से में बाद में आता है, या किसी के हिस्से में देर तक रहता, किसी के हिस्से में कम तक रहता। तो कहते हैं सुख आता नहीं और दुख जाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुखालय है। जब ये दुखों का घर है तो इसमें खुशी कहां से मिलेगी? लेकिन कौन खुश है? जो इस संसार में लिप्त नहीं है वही खुश है। लेकिन जो इस संसार में लिप्त हो गया वो कभी खुश रह ही नहीं सकता है। वो तृष्णा इतनी बाकी रह जाती है, जरा सा, बस जरा सा, ये हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये हो जाता, ये नहीं तो कुछ गम और होना था, मेरी किस्मत में रोना था तो रोना था। तो दुख है कोई व्यक्ति विशेष, हाँ, जो संसार में लिप्त नहीं है उनको तो किसी का दुख ही नहीं है। उनकी किस साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। निर्माण मोहाजित संग दोष, मान से निर्माण हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ दो आदमी खुश रह सकते हैं, एक भक्त और दूसरा पागल। और फिर भक्ति के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। क्या पागलपन? सब कुछ छोड़ का छाड़ करके, सबकी तृष्णा छोड़ करके बस भगवान के चरणों में मन लगा दिया जाए और तब आनंद ही आनंद। तो कौन सा था ये? 12 13। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले, आप लोग एक दूसरे को शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।